So hello everyone, welcome back to Tech Orbit channel. So in today's session, I will continue that VLOOKUP function. So in yesterday video, I taught you about like how we can do VLOOKUP in same sheet if both tables in a same sheet. Now in today's session, I will teach you the how we can use the VLOOKUP in different sheets and different workbook. And then further, I will teach you about HLOOKUP, XLOOKUP like that. Okay, so firstly, I will start VLOOKUP again with example. Okay, with Excel sheet I will teach you. Okay, so I will open that same Excel sheet. I in that video I already attached my GitHub link, so you can download that data set from there and practice that. Okay, so today I will teach you how we can use the VLOOKUP in different. You can see one table in this sheet, one table in this sheet. Okay, so now I want like extract the column in this sheet from different sheet. Suppose here the employee ID, last name, first name. Here is the city and state in different city. I want the city and state here. Okay, so what we will do, we can do one thing here. We can use VLOOKUP. So as you can see here there is a two column. So according to that, how many column you want to extract, you have to select that much column. Two column you want to extract, select that two column and start writing VLOOKUP. So VLOOKUP. Okay. Then first value is a lookup value. So lookup value is this, which is the unique in both. Okay, I written that lookup, I selected that lookup value. Okay, and you can apply the dollar sign. Okay, so dollar sign I will apply here. You can apply dollar sign in column. So I will apply dollar sign, then comma, then table array. So table array means which column you want to extract. This column I want to extract, so I can select this column. Okay, when I will select, I have to apply the dollar sign in the table array. Whenever you are selecting table array, you have to apply the dollar sign. Okay, so what you can do in a one way, you can do you can apply you can use function and the F4, so it's automatically applied that dollar sign. That thing I want to tell yesterday, function and F4. Okay, then it will apply that absolute difference. Okay, then comma, then column index, which how many column you want to extract. I want to extract two columns, city and state. So what is the index number? So 2 and 3 the index number. But in previous I extract only one column. But suppose in one time you want to extract multiple columns, on that time what you can do, you can use the array. What array? You can use the curly brackets. You can use the curly brackets, and after that curly brackets you can write the column index number. So 2 and 3. Okay, then comma, then I want exact match. So false. For false we can write 0, for true we can write 1. So we can write 0 here and enter. Now as I told you, you want to extract two column here. Okay, so you used array here. So what time you don't press enter directly, you have to use control shift enter. Okay, then it will apply in both column. Then just drag that, then direct flash fill. Okay, so just drag that. So I dragged it, so it's automatically filled. Okay, so you can see here the both column came automatically here. Okay, so that is the example of for a different sheets. Now I will teach you about HLOOKUP. I will tell you something about HLOOKUP, then I will give example also. Okay, so what is the HLOOKUP? Same like VLOOKUP, there is a HLOOKUP. VLOOKUP, when we want to extract column values as a vertical and we want to extract the column value as a horizontal, then we can use the HLOOKUP. Okay, so what now I will tell you the definition. So H stands for a horizontal. So if you want to search by vertically, you can use the VLOOKUP, but if you want to search horizontal, so you can use the HLOOKUP. Okay, same like VLOOKUP, we have one formula HLOOKUP, same everything, lookup value, then table array, then on that vertical, so we are using column index. Here the HLOOKUP, so we will use the row index. Okay, then false and true, whatever you want to select. Okay, then okay, so okay, so that is okay. I will show you the example of HLOOKUP also. Okay, so क्या करते हैं यहाँ पर HLOOKUP में आते हैं. ओके, देखो अब क्या होता है ना कि इस तरह से हमारे पास डेटा है, ठीक है ना. तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा है हमारे पास, तो हम इसमें कैसे हम कुछ भी हमको फाउंड करना है तो हम कैसे फाउंड कर सकते हैं. ओके,
हमको हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको हमको चाहिए कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स लिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, जो ये अकाउंट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, और ये स्टूडेंट्स नेम है ABCDE, ठीक है। हम चाहते हैं ई स्टूडेंट का मैनेजमेंट में कितने मार्क्स है, ओके। जो ई स्टूडेंट है उसके मैनेजमेंट में कितने मार्क्स है, सपोज यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, तो हम कैसे वो यूज कर सकते हैं। हम लगाएंगे एच लुकअप। तो एच लुकअप में क्या हो गया, हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। हमारा क्वेश्चन है कि जो ई स्टूडेंट है उसके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हमारे पास जो ई स्टूडेंट है, तो हम ई स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देंगे, इसकी हम इस वाले स्टूडेंट के हम सर्च करना चाहते हैं, कॉमा हम टेबल एरे लेंगे। तो टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया, फुल टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हमने क्या बोला, टेबल एरे में हमेशा हम डॉलर साइन लगाएंगे, कॉमा कॉमा हम रो इंडेक्स नंबर देंगे। तो हमें इकोनॉमिक्स का चाहिए, तो रो हमारा कौन सा हो जाएगा, रो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। सो हमने रो नंबर दिया 3, कॉमा हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इंटर 67, ओके। तो हमारे जो ई स्टूडेंट है उसके इकोनॉमिक्स में 67 मार्क्स है। तो ऐसे हम फाउंड कर सकते हैं एच लुकअप का यूज करके। अगर हमारे पास एच लुकअप नहीं होता तो हम ऐसे करके सर्च कर रहे होते, ओके दिस वन। अभी हमारे पास बहुत सारा होता तो हम ऐसे स्क्रॉल करके सर्च कर रहे होते, वो हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ये डिफरेंस होता है एच लुकअप एंड लुकअप में। बट एच लुकअप में बहुत कम बेसिकली डाटा जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी लुकअप वर्टिकली ही स्टोर होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ कभी कभी अगर ऐसा हो कि एच लुकअप में स्टोर हो तो तुम यूज कर सकते हो उसका। सो अब हम चलते हैं एक्स लुकअप में, ओके। सो हम एक्स लुकअप को अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि एक्स लुकअप जो होता है वो बहुत जगह यूज होता है। सो उसको लेके चलते हैं। सो एक्स लुकअप, ओके। सो दिस इज अ मॉडर्न फंक्शन ऑफ अ लुकअप फंक्शन, ओके, मॉडर्न, ठीक है। ये वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप का हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। हम इसमें वर्टिकली भी फाउंड कर सकते हैं वैल्यू और हॉरिजॉन्टली भी फाउंड कर सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं। तो हम एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम जैसे ही इक्वल करके एक्स लुकअप लिखेंगे तो हम एक ब्रैकेट आएगा, उस पर हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी कि जो वैल्यू दोनों में मैच कर रही हो, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमने लिखा जैसे, देन लुकअप अरे, हम टेबल अरे जिससे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। देन एक चीज है इसमें कि इसमें हमको कोई कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स हमको नहीं लिखना पड़ता। हमको जो कॉलम रिटर्न में चाहिए ना, वो कॉलम का अरे हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिटर्न अरे को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें कि हमको ये नहीं देखना पड़ता कि कौन से नंबर का रो है, कौन से नंबर का कॉलम है, वो नहीं देखना पड़ता है। हमें सिर्फ वो रो ही पूरी एक्सट्रैक्ट कर लेनी पड़ती है और उससे वो फाउंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक चीज इसका एडवांटेज ये है, वी लुकअप में हमने बताया था कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसमें जो कि ये फुलफिल करता है। कैसे कि ये लेफ्ट साइड भी सर्च कर सकता है और ये राइट साइड भी सर्च कर सकता है। ये किसी भी साइड सर्च कर, लुकअप वैल्यू किसी भी साइड हो, ये दोनों तरफ सर्च कर सकता है, ठीक है ना। ये हमेशा ये एग्जैक्ट मैच देता है, ठीक है। कस्टम इरर तुम इसमें लिख सकते हो, अगर कुछ तुम लिखना चाहते हो कस्टम इरर तुम लिख सकते हो कि हाँ अगर कहीं पर वैल्यू नहीं फाउंड हो रही है तो वीलुकअप में क्या होता है, तुम कस्टम इरर नहीं लिख सकते हो। वहां पर अगर कोई वैल्यू नहीं फाउंड होगी तो एन आ जाएगा, हैशटैग वैल्यू ऐसे करके इरर आ जाएंगे उसमें। बट एक्स लुकअप में क्या होता है, तुम कस्टम इरर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सो ये चीज होती है। सो ये दोनों चीजें जो ये एक्स लुकअप फुलफिल करता है, जो वी लुकअप और एच लुकअप में नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज करते हैं, एंड वन थिंग, वी लुकअप में एक और ड्रॉबैक होता है कि ये डायनेमिक नहीं होता है, बट एक्स लुकअप डायनेमिक हो जाता है। ये एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर तुम इंसर्ट भी करोगे ना कोई कॉलम तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो कॉम्बिनेशन होता ही है वी लुकअप एंड एच लुकअप का। सो ये कुछ चीजें हैं इसमें जो बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है ना। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो हम इसमें ही देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम पे को यहाँ पर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक्स लुकअप का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। एक्स लुकअप, अब देखो कितनी सारी चीजें आ गई इसमें। लुकअप वैल्यू है, लुकअप अरे है, रिटर्न अरे है, इफ नॉट फाउंड मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, तुम्हारा बिल्ड इन, तुम अगर कुछ अपना लिखना चाहते हो, अगर नहीं फाउंड हुआ तो तुम वो अपना मैसेज लिख सकते हो, ठीक है ना।
मैच मोड लिख सकते हो, कौन सा मैच मोड तुमको अप्लाई करना है उसमें, ठीक है ना। मतलब कि मैच मोड मतलब कि ये क्या करता है, एग्जैक्ट मैच, ठीक है ना। मतलब 0 लिख सकते हो, 1 लिखोगे तो क्लोजेस्ट होगा जो, और ग्रेटर देन होगा तो इक्वल होगा तो वो लिख देगा। -1 लिखोगे अगर तो लेस देन होगा, इक्वल होगा तो वो ले लेगा, ठीक है ना। सर्च मोड हमेशा हमेशा क्या रहता है, ये सर्च मोड इसका क्या रहता है, ये अप टू डाउन और डाउन टू अप सर्च कर सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे फीचर है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लुकअप लिखा एंड देन लुकअप वैल्यू सर्च करें, लुकअप वैल्यू देन हम लुकअप अरे मीन्स ये हमारे पास लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप अरे कौन सा हुआ, ये लुकअप अरे हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल अरे नहीं है, टेबल अरे होता तो हम पूरा सिलेक्ट करते, लुकअप अरे है तो ये लुकअप वैल्यू है, तो इसके लिए लुकअप अरे कौन सा हुआ, ये लुकअप अरे हुआ, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन फंक्शन F4, फंक्शन F4 से इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई हो जाएगा। देन कॉमा, देन रिटर्न अरे, हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम ये कॉलम रिटर्न करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम रिटर्न अरे को हम सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न अरे को सिलेक्ट किया, देन फंक्शन F4 कॉमा, हमें अगर नहीं फाउंड हो तो हमें क्या आ जाना चाहिए, NA लिख के आ जाना चाहिए। देन कॉमा हमारा मैच मोड क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो कि 0 है, कॉमा देन हमारा फर्स्ट टू लास्ट हमको सर्च करें तो हम फर्स्ट टू लास्ट, तो इंटर किया एंड देन प्लस इट्स, ये सारा हमारा पे यहाँ पर आ गया एक्स लुकअप का यूज करके, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज तुमको दिखाते हैं जो क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अगर कोई भी कॉलम तुम इंसर्ट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, हमने हमने बताया था। तो सपोज हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, Ctrl+Shift+, तो यू कैन सी when I inserted one column here, so you can see it's not affected here, okay, so that's the very good thing here, okay. What is in it's not allow in that VLOOKUP, so that is the XLOOKUP. So XLOOKUP we can use here also. So suppose हमको ई स्टूडेंट का मैनेजमेंट में कितने नंबर्स आए हमको पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, XLOOKUP कॉमा लुकअप वैल्यू, सो हमको स्टूडेंट का, ई स्टूडेंट का, सी ए वाली लुकअप वैल्यू हो गई, तो लुकअप अरे क्या हो जाएगा, ये हमारा लुकअप अरे हो जाएगा। फंक्शन F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाया, देन हमारा रिटर्न अरे, तो हमको क्या चाहिए, हमको मैनेजमेंट के मार्क्स चाहिए, तो हमारा रिटर्न अरे क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न अरे ये हो जाएगा। सो फंक्शन F4 कॉमा 0, ठीक है, इंटर। सो 58, ई स्टूडेंट को मैनेजमेंट में 58 मार्क्स है, तो ऐसे हम एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंडेक्स एंड मैच की तरफ, इंडेक्स एंड मैच का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो चलो इंडेक्स एंड मैच समझा देते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो इंडेक्स मैच बेसिकली क्या होता है, देखते हैं, ठीक है ना। सो पहला चीज़ कि हम बताते हैं कि इंडेक्स मैच क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। यू कैन आस्क योर सेल्फ लाइक if the VLOOKUP cannot search from search left, what if column keep changing, okay, suppose there is a not an X lookup, so what you can use index match also, okay, ठीक है। so there is a two combination of two, index plus match. Index is basically it's written the value, it's written the value, and the match is basically find the row number, okay, the work। इंडेक्स का काम क्या होता है कि वो वैल्यू को रिटर्न करता है, मैच का काम क्या होता है कि वो रो नंबर को फाउंड करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, और लार्ज डाटा सेट में अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है। सो जैसे ही हम इंडेक्स लिखेंगे हमें क्या आएगा, हमें सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि तुम पहले रिटर्न रेंज को सिलेक्ट कर लो जो तुमको चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है वो लिखा, देन कॉमा, देन हम मैच लिखेंगे, मैच फंक्शन। अब हम मैच करेंगे तो हम लुकअप वैल्यू लिखेंगे, लुकअप वैल्यू जो वैल्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू लिखी, देन लुकअप रेंज लिखेंगे, लुकअप रेंज लिखा, लुकअप रेंज लिखने के बाद एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। इंडेक्स क्या करता है, हमारा अभी बताया वैल्यू रिटर्न करता है, एंड मैच क्या करता है, रो नंबर फाउंड करता है। तो ऐसे जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अच्छे से एक लुकअप फंक्शन बन जाता है जिससे हम एक डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें वी लुकअप, एस लुकअप नहीं यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स फंक्शन हम देखेंगे नॉर्मली इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स फंक्शन का यूज करके, देन मैच फंक्शन, देन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना।
सो जैसे बताया मैंने, इंडेक्स क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। सो इसका अगर हम डिफिनीशन बोलना चाहे तो हम कैसे बोल सकते हैं, इंडेक्स रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ सेल इन अ टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम एंड रो नंबर। ठीक है ना, ये इसका डिफिनीशन होता है। तो हम लेके चलते हैं एक, तो ये हमारा इंडेक्स मैच का एक हमारे पास है। सो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का। सो हम इंडेक्स लिखा हमने, तो इंडेक्स क्या करता है, हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये बोल रहा है हमें कि हमें एरे सेलेक्ट करो, तो हमने एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एरे सेलेक्ट कर लिया, फंक्शन F4 कॉमा, देन हम रो नंबर सेलेक्ट करेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टॉम का वेट चाहिए। ठीक है ना, टॉम का वेट चाहिए हमको, तो टॉम का हमको वेट चाहिए, तो हम एरे सेलेक्ट करेंगे। तो एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, सॉरी आई थिंक हमको एरे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम एरे सेलेक्ट कर ले, फंक्शन F4 कॉमा, हमको रो नंबर चाहिए, तो हमें टॉम का चाहिए, तो टॉम कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है। हमें कौन से कॉलम चाहिए, हमें चाहिए वेट चाहिए, तो 3। तो ये हमारा टॉम का वेट आ गया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं मैच का यूज करते हैं। मैच क्या करता है, हमने क्या बताया, मैच क्या करता है, पोजीशन रिटर्न करता है। देखा, मैच, सो मैच जब पोजीशन रिटर्न करता है तो हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, हमको किसका पोजीशन चाहिए, हमको इसका पोजीशन चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, लुकअप अरे, लुकअप अरे, हम जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमारा लुकअप अरे हो जाएगा। सो लुकअप अरे, कॉमा, 0, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 4th नंबर पोजीशन पे हमको ये वैल्यू मिली। ठीक है ना, सो ये क्या करता है कि मैच हमें पोजीशन रिटर्न करता है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन यूज करके देखते हैं कैसे फॉर्म कर पाता है। ठीक है ना, सो इंडेक्स मैच, इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या करता है, सबसे पहले हमको इंडेक्स का जो इंडेक्स मैच का जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने बताया आप लोगों को कि रेंज, हमको रिटर्न रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो हमको रिटर्न रेंज हमको कौन सी चाहिए, हमको चाहिए, हम चलो यहाँ पर नहीं, हम तुमको जो हमारे पास डेटा है उसमें हम यूज करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसको डिलीट किया, चलो यहाँ पर करके दिखाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमको सिटी चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, वो भी इंडेक्स मैच का यूज करके। तो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स। तो हमें सबसे पहले रिटर्न अरे चाहिए, रिटर्न अरे हमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न अरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, जो फॉर्मूला बताया था। देन हम क्या करेंगे, देन हम मैच लिखेंगे। ठीक है ना, मैच लिखा, मैच लिखते ही हमें क्या आएगा, हमें बोला जाएगा कि तुम लुकअप वैल्यू फाउंड करो, तो लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा, देन लुकअप अरे, लुकअप अरे हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, तो लुकअप अरे, फंक्शन F4 कॉमा, मैच टाइप 0 एंड तो ये हो गया। तो ये हमारे सारा रिटर्न करके आ गया सिटी ना, इसमें हमको कोई रो नंबर लिखने की नीड है, ना हमको इंडेक्स, ना हमको कॉलम नंबर लिखने की नीड है, हमको कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। हम सीधे क्या करते हैं, हमने अपना जो हमको चाहिए वो हमने लिखा, इसमें ना हमको कोई एरे यूज करने की जरूरत है। सब टॉपिक और है जो कि है इफ इरर और इफ एन। ठीक है ना, सो इफ इरर और इफ एन बेसिकली कब यूज किया जाता है, जैसे मान लो वी लुकअप जब तुम यूज कर रहे हो, तो एक्स लुकअप में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड इन होता है कि तुम वहाँ पर अगर कोई इरर आ रहा है तो तुम अपना मैसेज लिख सकते हो, तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो मैसेज तुम्हारा आ जाएगा। बट वी लुकअप में क्या होता है कि वो इरर मैसेज नहीं आता है, तुम्हें जो तुम्हारा कस्टमाइज मैसेज है तुम नहीं लिख सकते उस फंक्शन के साथ। तो अगर तुम वी लुकअप जब यूज कर रहे हो बट तुम कस्टमाइज मैसेज लिखना चाहते हो, तो तुम इफ इरर का यूज कर सकते हो वी लुकअप के साथ। कैसे कर सकते हो, लिखोगे इफ इरर, इफ का मतलब तो पता ही होता है कि इफ क्या मतलब होता है, यदि मीन्स इफ कंडीशन, अगर ये नहीं तो ये, ऐसे करके। सो इफ इरर का यूज कर सकते हो। So if error will replace, so if I tell you the if I tell you the if error or if any definition, so what will be like that, suppose you are using the VLOOKUP but this error is coming, okay, if any error is occurred in the lookup value, suppose you missed any value or any error like hashtag NA and hashtag ref and like that error is coming, but you don't want to show that hashtag NA and hashtag ref, so you can use the if error or if NA. So if error बेसिकली क्या होता है, रिप्लेस कर देगा किसी भी के टाइप को एरर को आपके कस्टमाइज मैसेज में। ठीक है ना, आपके कस्टमाइज वैल्यू में। ओके, सो ये इफ एरर का काम होता है। इफ एन ए फंक्शन क्या करता है, इफ एन ए फंक्शन केवल एन ए एरर जो होता है
उसको हैंडल कर पाता है, ठीक है ना, because this is NA na, so it will use only for the NA, but if error you can use for if error you can use for multiple type of like NA reference value like that. Okay, so that is the difference. So if error जैसे लिखते हो, if error का यूज VLOOKUP के साथ कैसे कर सकते हो, if error लिखा तुमने, if error लिखने के बाद VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे, एंड VLOOKUP फंक्शन के बाद अपना जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप अरे है, जो तुम्हारा टेबल रेंज है वो लिखा, एंड देन आपका जो कॉलम नंबर है, देन आपका जो भी एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए 0 लिखा, देन कॉमा करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉमा करके उसके बाद आप अपना जो मैसेज है वो लिख सकते हो एंड ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो. सो ये सिंपल सा होता है, कुछ नहीं होता, अपना कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हो, तो जहाँ पे एरर आ रहा है तो वो मैसेज वहाँ पर फिट हो जाएगा. इफ एनए क्या होता है, सेम होता है, सेम चीज होती है, बट ये सिर्फ एनए के साथ होता है, जहाँ पर हैशटैग एनए आ रहा होगा इधर वहीं पर केवल फिल करेगा. सो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल एक. सो हम यहाँ पर एक इरर लाने का ट्राई करेंगे कि हाँ इरर है, ठीक है ना. सो सपोज हम सिटी को यहाँ पर लाना चाहते हैं, सो हमने लिखा इफ इरर, ओके, देन VLOOKUP, ओके. तो VLOOKUP में हमको ये चाहिए कॉमा, देन हमें टेबल एरे चाहिए, तो टेबल एरे हमने लिया, ठीक है ना, कॉमा, इंडेक्स नंबर हम क्या कर देंगे, इंडेक्स नंबर हम दे देंगे आउटसाइड वाला, 1 2 3 4 5 6 दे देंगे इंडेक्स नंबर, कॉमा 0, कॉमा नॉट फाउंड लिख दिया, ठीक है ना. तो देखो यहाँ पर, क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर वो दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नॉट फाउंड तुम्हारा आप कस्टमाइज मैसेज तुम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो अपना. सो यही डिफरेंस होता है. चलो अब ये तो हो गया हमारा, जितने भी लुकअप फंक्शंस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिसिंग वैल्यूज, हाउ वी कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज विद एक्सेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनालिसिस. So bye bye for today. We will meet again with next topic. Okay.